Okay, so good evening, everyone. I hope I am loudly and clearly audible to everyone, and screen is also visible to everyone, correct? So without any delay, let's just start and welcome again back to the placement workshop session 4. It is day 4, and today we are going to discuss a very important part of MNC's interview process, that is while MNC is going to be in your college or in your campus, or you are going to be appear in such kind of companies. At that time, along with the questions which we have discussed day before today, that is we have discussed in the previous 3 days, all around 121 important question series are there. So I hope everyone will be doing very great in that and will do the logics. At the end of today's session, I am going to send the complete PDFs in the group, and definitely you all are going to get complete questions along with solutions. I will share these solutions and the questions with the authorities as well as in the group, right? So don't worry about it, and let's just start from the pace up session. Let's just start from the basic pace up session, and the question that you might be asked in your scenario format, right? In just a scenario format, and the question will look like that. It is general pace up problem. It is not asked in TCS, but such kind of questions can be framed. Okay, and after this pace up problem, we will be on the actual question of TCS NQT 2022. So let's start pace up first. So basically, if you are going to see, the question here is write a short code for making the traffic light system by using conditional if, elif, else, and take input from user. Basically, you have to take the input from user in sense of color. If color is to be red, you have to execute that stop instruction. If color is to be yellow, you have to send get ready instruction, and if the color is green, you have to send the instruction that is go. Okay, so you can use any programming language. You can use C language, you can use Python, or you can use Java, but the basic question that you have to solve here is the basic fundamental is that how traffic light system works in traffic areas, right? So at any square, I hope you see such kind of boards where the lights are going changed, and whenever lights going change, we can follow the instructions over that, right? So basic, very basic instructions you have to follow and write the code. Everyone, I am expecting everyone to at least answer this question, because such kind of questions may be framed as a basic part just for general pace up, just to make you convenient and in their environment. And once you will go to be in their environment, they will be asked some kind of framed questions along with some constraints like this. Okay, so everyone try to answer this question, that how to write some piece of lines for this. You do not need to write. If someone is unable to write the exact code, if someone is unable to write the exact code, what you can do, you can at least write the algorithm or some piece of pseudocode, so that we can understand, or the HRs will be understand that exactly you know the concepts. Okay, so just because of that, at least you know the concepts, we are discussing this question. The question is very much simple, expecting everyone to at least write some piece of lines, that how you are going to solve it. You can use any technology like C, Python, or Java, and it is very, very basic question, very, very basic question it is. Okay. Okay, let me introduce you
that how you are going to answer this, and from next question onwards you are going to solve it. Okay, so let's focus. Let me use this time Python. Let me use this time Python. You can use any technology, C++, Java, Python, right? Earlier we have used C++, Python also, right? So let me write the code of this problem in Python. So firstly, the condition is that we have to take the input from user. So let me take, let's say color equals to input. Input is a keyword in Python to take the input from user. And under input, what I am asking, enter any color. Okay. Now, once I will put this statement to the users, right? User have to enter some kind of color, and whatever color user is going to be put, that is going to store in the keyword color. Thereafter, we have to use if, elif, else. So do not get confused what elif is. Elif is just short form of else if. Elif is just short form of else if. Now the next line would be like, if color equals to, that is, this is comparison operator, and if color equals to red, then your statement would be, your printf statement would be, your print statement would be, basically if we are using Python, then we are going to use print statement. And what print statement is going to print in this case? In this case, print statement is going to print color equals to red. It means that you have to execute stop. And the syntax of if in Python, that you have to include this colon here. Elif, that is else if color equals to, let's say if user have inputted yellow, and if color is yellow, then you have to print get ready. Then you have to print get ready. And let's say elif, again I am using else if color equals to if color equals to green. In that case you have to print, in that case what you have to print, go. Okay, now else part. Else, let's say user doesn't enter red, user doesn't enter yellow, user doesn't enter green. Let's say user entered pink, or user entered violet, or any other color apart from red, yellow, or green. In that case, else statement is going to execute error in input value. Error in input value. In that case, user is going to print error in input value. This is how this logic will work. So this is the Python code. This is the Python code for the scenario which they created to create a traffic light system. And this is how Python code is going to be executed. I hope this one is very simple code and everyone got it. Everyone got it, that how this kind of problem can be solved. Nothing much more complex in this problem. Is this one is clear to everyone? Just a pace-up problem. Yes, sir. Yes, because such kind of problems may be asked from all of you guys. Such kind of problem, 100% they can ask. 101% such kind of problems may be asked in the basic level, in the basic part of your interviews. So it would be better to pace up such important questions which are very basics, and you have to explain your code by
dry and run method like this. Should I proceed for the next? For the actual question? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's come to the exact question of PCS NQT. Let's consider the problem number 1. Here we are going to first scan the problem. One advice that I want to give to all of you. Questions are going to seem lengthy, but one advantage you are going to get. If questions are lengthy, then they are giving much and much information to all of you. In that case, the solution will be very easy, because if question is lengthy means they have put so many information in it. And if we are having so many information inside it, then definitely we can scan the problem and we can do the questions. Okay. So if more information is there, it doesn't mean that the question is complex. It means that question is very easy for us, because so many informations are already given, and by using that much information, we have to write some short piece of codes. So let's scan the question first, right? So don't get panic with that much length of explanation, because in real time you are going to see such kind of problems, whether you are going to appear in TCS or Infosys or IBM or Wipro or Cognizant or Accenture or Gensar Technologies, SCL Technologies, Tech Mahindra, or any MNC. Definitely 1 or 2 questions will be like this, apart from the questions which we have already discussed in the previous 3 sessions. From previous 3 sessions, 3 to 4 questions will be directly there, which are already in conventional, like palindrome programs, like factorial programs, like multiplication of matrices, like Armstrong numbers, like sorting, like searching, like pyramid pattern problems, right? They are conventional problems. Along with that, one session would be there in which some paragraphs would be written. Along with paragraph, they are also going to mention such kind of examples, that if you are having input, then output should be like that. If this is the input, then output should be like that. So you have to analyze complete questions, because 101%, what I am saying again, 101% you are going to get such kind of problems. At least one question you are going to get such kind of, and these are very, very easy in nature. Those solutions are very easy. So don't panic, just scan the question one by one. So what our question is, क्वेश्चन को अब हम समझ रहे हैं. क्वेश्चन बहुत इजी है. क्वेश्चन है, देयर इज अ जार full of candies for sale at a mall counter. Jar has the capacity n, that is jar can contain maximum n candies, where when jar is full at any point of time, jar can have m number of candies, where m must be less than equals to n. Obviously true है कि एक हमारे पास जार है किसी मॉल में, और वो जार जो है उसमें से कोई एक पर्सन है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, कैंडीज सेल कर रहा है, और मैक्सिमम n कैंडीज जो है इस जार में आ सकती है. नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लेट से कुछ कैंडीज इसने सेल कर दी, तो एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसमें m नंबर ऑफ कैंडीज बचेगी, करेक्ट, और वो m हमेशा छोटी होगी n से. ऑब्वियसली ट्रू है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ही n है, तो जो आपका कैंडीज सेल होगा तो उसके बाद m मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू n. नाउ आगे का हम स्कैन करते हैं. कैंडीज आर सर्व्ड टू द कस्टमर्स, जार इज नेवर रिमेनिंग एम्प्टी, मतलब जार को हमको कभी भी एम्प्टी नहीं होने देना है. एज व्हेन लास्ट k कैंडीज आर लेफ्ट, जार इज रिफिल्ड with new candies in such a way that jar get fulls. Let's say कि जार का कैपेसिटी है n, लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है कि इस जार को वो जो सेलर है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होने दे रहा है. वो देखता है कि इसमें अब सिर्फ k नंबर ऑफ कैंडीज बची है, इसमें सिर्फ अब k नंबर ऑफ कैंडीज बची है, तो वो वापिस जार को फुल कर देता है. मतलब वापिस जार में कितने नंबर ऑफ कैंडीज हो जाते हैं, n. इस जार को वो क्या कर रहा है, कभी भी एम्प्टी नहीं होने दे रहा है, और
कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर के कैंडीज उसमें रह जाते हैं तो वो उसको वापस रिफिल कर देता है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज वापस से उस जार में कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, क्योंकि जार वहां पे वापस फुल हो रहा है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, राइट अ कोड टू इम्प्लीमेंट अबव सिनेरियो। ये जो अबव सिनेरियो हमको दिया हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कोड लिखना है। यू आर फ्री टू यूज एनी टेक्नोलॉजी, यू कैन यूज सी, you can use Java, you can use Python, and you can use any technology. Then display jar at counter with available number of candies. Input should be the number of candies one customer can order at a point of time. At a point of time, only one customer can order, and we have to update the jar after each purchase. Right, after each purchasing from any customer, we have to update the number of candies that will be remained in the jar and display jar at counter. Output should give number of candies sold and updated number of candies in jar. After every selling order, we have to update that this much candies are sold and this much candies are left in the jar. If input is more than candies in jar, it means that this is our invalid input, because at any case input can't be more than n, because n is the maximum capacity that jar can hold. Now you can understand the problem like that. If n equals to 10, it means that n number of candies available, it means that 10 number of candies are available, and out of 10 we are setting the limit k, we are setting the limit k that is less than 5. It means that when the value of k will reach to 5, we are again going to refill the jar to the fullest, so that jar will not be emptied at any point of time. It means that whenever jar is going to have 5 or less than 5 candies, we are going to refill it, so that again it is going to contain complete 10 candies. Right, now how you are to write a piece of code. Let's say if n equals to 10 and k is less than equals to 5, in that case if input value is 3, it means that first customer came and he purchased 3 candies from this jar. And what should your output is going to be look like? Your output should be going to look like number of candies that is sold is 3, that whatever your input value is, and you have to subtract that much number of candies from the fullest capacity n. So number of candies available is 7. This is your example 1. Let's say example 2. Let's say n equals to 10 and k is less than equals to 5. In that case, if input value is 0, then output value is invalid, because customer didn't purchased. So customer must have to purchase some candies at a point of time. So if customer will purchase 1 candy, then it is going to print number of candies sold is 1 and number of candies left is 9. If it is 1. Getting it, everyone? The problem scenario is clear to everyone? Please tell me first. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. if the problem scenario is clear to everyone, then kindly write the code for it. Kindly write the steps that how you are going to solve such problems, because this is very previous year TCS NQT question. It was asked in TCS NQT 2022. First you tell me, do you know something about TCS NQT or not? Do you know what is Yes, sir. TCS NQT? Okay, so if you know, it is well and good, and if you don't know, then let me tell you, TCS NQT is the national level qualified test. TCS has changed its way for hiring the candidates. It conducts every year 2 times. Every year it conducts 2 times NQT tests, and in each test they have conduct a written test which is followed by coding rounds. Right, in written test there is a general aptitude, there is a reasoning, there is a verbal ability. Thereafter there is a technical questions, normally 10 questions asked here. If you qualify in this technical question round, whose cutoff is around 6 to 7,
If 10 questions are there, out of this 10, 6 to 7 is generally the cutoff. And if you qualify them, then after that you are going to get coding questions like this, like this. And if you are going to solve such kind of coding questions, then interview call will be there for you. And in interview call, the questions that is going to be asked, we already have discussed in our previous 3 sessions. Getting it? So right now, in this part, in this coding part, such kind of 1 or 2 problem may ask. Basically 2 problems asked, 1 problem of easy level and 1 problem of intermediate level to complex level. And similar, this problem was asked in intermediate level in TCS NQT 2022 previous year. So I hope you can match the level that what kind of coding questions TCS is asking in NQT under this coding round. Correct? So answer is very easy. The answer I am going to explain you. Don't worry. Answer is very, very, very much easy. You just need to apply your logics that they have mentioned these conditions already. They have given us lot of information, and they also have given us some use case scenarios that if n is this, k is this, then your output is going to look like this. If n is this, k is this, then your output is going to look like this. Then how you are going to solve such kind of problems? It is a major problem. It is a major kind of problems that students feel while solving the question, that they panic while reading some kind of paragraph. But don't worry, this question, as much as long question you are going to get, the solution is very easy and efficient. So don't worry, let me solve this question for you. And for next question, yes, you can use anything. No constraint is here. No constraint, guys. No constraint. You can use any technology, any methodology, any kind of functionalities, any kind of header files, any kind of modules. There is no any constraint. You just have to answer. You just have to follow all the instructions which is given to us in this paragraph, and thereafter we have to write some piece of code. So see here, I am explaining the solution for first problem. You can see this was our problem, 2 pages problem. This was our problem, 2 pages problem. And you can simply see they have also mentioned use case scenarios, and the solution is very easy. The solution is only 9 or 10 lines, and this is the complete solution. This is our complete solution. How? Just focus here. What we did here, I am explaining the code to everyone. Kindly focus here and observe that how this kind of problems can be solved. What would be your methodology while you are going to appear exactly yourself in the exam? What kind of methodology you are going to apply and how you are going to explain them? See, first header file is included. Main function onwards, what you have did, you have declared some variable n, k, and one more, that is num. You have assigned n equals to 10. That is nothing but the capacity of jar. The capacity of jar is represented with n. It is 10. It means that it can maximum hold 10 candies. 10 candies it can maximum hold. K equals to 5. It is our constraint. It means that if any point of time only 5 candies will be remained, then we have to again refill that jar. You can put this value anything. There is no constraint over n and k. You can assume n anything, you can assume k anything. Thereafter, what we are doing? We are asking the user that how many candies he want to purchase from that seller. So let's say user have mentioned 4. So if user have mentioned 4, then at the address of num variable, this 4 is going to be stored. After this, if num is greater than 1 and num is less than 5, what does the significance of this line, guys? Everyone, what is the significance of this line? Anybody can tell?
Okay. Sir, if number value is greater than or equal to 1 and less than 5 or equal to 5, the statement has print out as execute, which is number of candy num or number of candies left, which is n minus num. Okay, let me tell. Basically, this condition is put here because of this constant k equals to 5, because we already told that if it is having less than 5 candies, in that case we have to refill all them. That is why a user can purchase the candies in the range of 1 to 5. User can't purchase 6 candies, because if user is going to purchase 6 candies, in that case the capacity of jar will be at any point of time will be less than 5. So we have to refill that. That is why this is used. Okay. So if k is 6, then we can use 6 here. It means that what is the maximum number of candies a user can ask for, right? That is why. Okay. So depending on the value of k, we can modify the range of this. Now let's say user have entered 4. In that case, the value of num is representing the number of candies that user have asked for. So number of candies sold num, that is this 4 is going to print, and printf number of candies left n minus num. What is the value of n? 10 minus 4, that is 6. So seller have sold 4 candies and the remaining candies in the jar is 6, and else, right? It means that if user will input 6, in that case invalid input will be there, and we are going to print number of candies left, whatever number of candies will left here itself, right? So this is how your program is going to run, and this is very simple program. You can simply see basically 1 2 3 4 5 6 7, only 7 line of code you have to write in order to make such kind of problem. This problem was asked to solve in 30 minutes. 30 minutes was given, and the weightage of marks, I think around 15, or it may be 30, I don't know exactly, but 30 minutes you are going to get to write only 7 or 8 line of code. So everybody, please tell me honestly that while reading such a problem and solving the problem in that manner, if you are going to ask in TCS NQT round, can you solve that or not? Are you able to solve such kind of problems now onwards using reading the complete paragraph, complete analyzing the use case scenarios, and then implement the logic like this? Clear है सभी को? Yes, you can use Java. Yes, you can write, Shashank. Java यूज कर सकते हो, C++ यूज कर सकते हो आप. टेक्नोलॉजी का कोई कंस्टेंट है ही नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का कोई कंस्टेंट नहीं है. आप डायरेक्ट कोई फंक्शन है तो वो भी यूज कर सकते हो. ये प्रॉब्लम सभी को क्लियर है? इस प्रॉब्लम में किसी को भी कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल. आई विल एक्सप्लेन अगर किसी भी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम है, एल्स आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर n का वैल्यू अपन 6 मतलब यूजर से नहीं ले सकते हैं? यूजर से ही n और k का ये n का वैल्यू आप अगर चाहो तो यूजर से ले सकते हो. इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट और 2 स्कैनफ स्टेटमेंट अलग से लगाने होंगे. मतलब हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट इधर लिखेंगे और उसमें बोलेंगे एंटर द कैपेसिटी ऑफ जार, और लेट से यूजर जो भी इंटर करने वाला है वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैनफ में हम उसको स्टोर कर लेंगे %d, और लेट से कैपेसिटी नाम का कोई भी कैपेसिटी ये नाम का कोई भी हमने वेरिएबल बना दिया. ठीक है, तो ये जो कैपेसिटी वाला जो वेरिएबल है उसमें हम कैपेसिटी यूजर से ले सकते हैं. नो वरी, गेटिंग इट? आप चाहो तो k का वैल्यू भी यूजर से ले सकते हो यूजिंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स अहेड ऑफ दिस वन. क्लियर? Yes sir. Yes, after 6 it will not go to invalid input. Yeah, see, so basically let's say कि अभी हमारे पास यूजर ने इनपुट 6 दिया है, तो उस केस में क्या होगा, उसका रेंज ये नहीं है, तो वो बोलेगा इनवैलिड इनपुट, मतलब इनपुट आपका इनवैलिड है. तो यूजर हो सकता है उसको रिड्यूस करके 5 बोले. अगर 5 होगा तो यूजर का जो इनपुट होगा वो वैलिड हो जाएगा,
और ये बोलेगा कि नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड इज 5 एंड नंबर ऑफ कैंडीज लेफ्ट इज 5, इन दैट केस क्या होगा, हम बाद में एक और कोड लिखेंगे लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है, और हम वापस जो ये n का वैल्यू है वो 10 असाइन कर देंगे। तो n का वैल्यू 10 स्टैटिकली असाइन कर देंगे ताकि वो वापस से रिफिल हो जाए, मतलब वापस से वो क्या शो करे, अगर वैल्यू 5 से नीचे आ जाए तो कि वापस से वो कंप्लीटली रिफिल हो गया, मतलब n का वैल्यू वापस 10 हो गया। क्लियर है? यस, मैंने वही बताया अंकित कि अगर आप वैल्यू 6 लोगे तो वो इनवैलिड इनपुट बताएगा। 6 अगर आप लोगे तो यूजर कांट परचेज बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन के, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमने एक कंस्टेंट लगा रखा है जो कि हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ था ना, कि हमको प्रॉब्लम में इटसेल्फ दिया हुआ है, इफ यू हैव रीड द पैराग्राफ, कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे के कैंडिडेट अगर बचती है तो हमको जार को पहले रिफिल करना होगा, और जार का कैपेसिटी ही 10 है, तो हम 6 कैंडीज कोई भी कस्टमर एक साथ परचेस नहीं कर पाए। ठीक है, बेसिकली आपने देखा होगा अमेजन पर जो ऑफर्स आते हैं या फिर फ्लिपकार्ट पर जो ऑफर्स आते हैं, उसमें अगर कोई भी लेट से एमआई ने नया फोन लॉन्च किया, एमआई ने नया स्मार्टफोन क्या किया है, लॉन्च किया है, तो वहां पे होता है कि एक यूजर मैक्सिमम 2 फोन बाय कर सकता है, या कोई भी नया आईफोन आया है तो इनिशियली क्या होता है, कोई भी यूजर सिर्फ एक फोन बाय कर सकता है, तो बैकग्राउंड में यही एल्गोरिथम लगती है। गेटिंग इट एवरीवन? Yes, sir. Okay, let's move to the next problem. Now this is the problem and it is also TCS NQT 2022, ये भी TCS NQT 2022 कोडिंग राउंड प्रॉब्लम है, कोडिंग राउंड प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है TCS का और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसको गो थ्रू करो, मैं इसको एक बार रीड करता हूँ, कंप्लीटली प्रॉब्लम को हम स्कैन करते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, आपको अपना लॉजिक बिल्ड करके सोचना है, बन जाता है वेल एंड गुड, एल्स आई विल एक्सप्लेन द डिटेल्ड सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन ये है, सिलेक्शन ऑफ एमपीसीएस एग्जाम इंक्लूड्स फिटनेस टेस्ट, एक एग्जाम में एमपीसीएस उसके अंदर फिटनेस टेस्ट है, विच इज कंडक्टेड ऑन ग्राउंड, वो ग्राउंड पे कंडक्ट होती है, देयर विल बी अ बैच ऑफ 3 ट्रेनीज, वहां पर 3 ट्रेनीज का एक बैच है जो कि रनिंग टेस्ट के लिए उस ट्रैक पर अपीयर करने वाला है, और उन 3 ट्रेनीज के कितने राउंड होने वाले हैं, 3 राउंड्स होने वाले हैं। यू नीड टू रिकॉर्ड देयर ऑक्सीजन लेवल आफ्टर एवरी राउंड, हर राउंड के बाद आपको उन तीनों ट्रेनी का क्या करना है, ऑक्सीजन लेवल नापना है। आफ्टर ट्रेनी आर फिनिश्ड विथ ऑल राउंड्स, जब ट्रेनीज क्या करेंगे, तीनों राउंड फिनिश करेंगे तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन लेवल होंगे हर ट्रेनी के, करेक्ट। हमको क्या करना है, कैलकुलेट फॉर ईच ट्रेनी हिज एवरेज ऑक्सीजन लेवल ओवर द 3 राउंड्स, जो तीनों राउंड में ऑक्सीजन लेवल आया है उसका एवरेज हमको निकालना होगा, और एवरेज अगर जिसका भी हाईएस्ट होगा उसको हमको क्या करना है, मोस्ट फिट ट्रेनी का अवार्ड देना है, या उसको सिलेक्ट करना है कि ये जो है मोस्ट फिट ट्रेनी है। अगर मोर देन 1 ट्रेनी ऐसे होते हैं जिनका एवरेज जो है वो सेम है, मतलब मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, उस केस में उन सभी को सिलेक्ट करना है, अगर मैक्सिमम जिसकी भी पास ऑक्सीजन लेवल है। तो हमको क्या करना है, डिस्प्ले द मोस्ट फिट ट्रेनी और ट्रेनीज, मतलब 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, and the highest level of their oxygen level. Note, the oxygen value entered should not be accepted if it is not in the range between 1 and 100. उनका ऑक्सीजन लेवल हमको एक्सेप्ट नहीं करना है अगर वो 1 से 100 की रेंज में नहीं है, अगर 1 से नीचे है बेसिकली वो होगा नहीं, या 100 से ज्यादा है वो भी नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कोई इनपुट वैल्यू देता है तो हमको वो एक्सेप्ट नहीं करना है। If the calculated maximum average oxygen value of trainees is below 70, then declare that trainees as unfit and meaningful messages all trainees are unfit. Let's say हमने सभी का ऑक्सीजन लेवल नापा और लास्ट में तीनों ट्रेनी का अगर जो एवरेज लेवल है ऑक्सीजन का वो 70 से बिलो आता है, हमको ये बोलना है कि वो ट्रेनी फिट नहीं है। अगर सारे ट्रेनीज का 70 से लेस एवरेज ऑक्सीजन लेवल आएगा तो सभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और ये तभी मैसेज प्रिंट करना है जब किसी का भी लेवल क्या हो, 70 से नीचे हो। लेकिन एवरेज ऑक्सीजन वैल्यू शुड बी राउंडेड, जो भी एवरेज ऑक्सीजन वैल्यू होगा वो आपको राउंड करके लेना है, जैसे कि 70.5 है तो आप 70 ले सकते हो, या 70.99 है तो 71 ले सकते हो। बेसिकली आप फिलहाल इंटीजर में ही वर्क करें, तो आप देखोगे कि हमको जो इसका इनपुट वैल्यूज है किस ऑर्डर में लेना है,
95, 92, 95, 92, 90, 92, 90, 92, 95। इसका क्या मतलब है कि जो आउटपुट वैल्यूज है ट्रेनी नंबर 1, ट्रेनी नंबर 3, मतलब आपको क्या करना है, राउंड 1 में जो पहला वैल्यू है ऑक्सीजन वैल्यू पहला किसका होना चाहिए, ट्रेनी का, ट्रेनी ऑफ 1, सेकेंड वैल्यू ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 1, और थर्ड वैल्यू ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 3। मतलब कि पहले राउंड में राउंड वन में इनका ऑक्सीजन लेवल क्या है। लेट्स से राउंड 1 में इसका ऑक्सीजन लेवल है 90, इसका ऑक्सीजन लेवल है 92 और इसका ऑक्सीजन लेवल है 94। तो हमको इस तरीके से वैल्यू लेना है। फिर राउंड 2 में रिस्पेक्टिवली ऑक्सीजन लेवल की वैल्यू लेनी है। फिर राउंड 3 में रिस्पेक्टिव ऑक्सीजन लेवल जो उसका वैल्यू लेना है। मतलब ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रेनी 1 का ऑक्सीजन लेवल है राउंड 1 में। इसका क्या मतलब है, ट्रेनी 2 का ऑक्सीजन लेवल है राउंड 1 में। इसका क्या मतलब है, ये ट्रेनी 3 का ऑक्सीजन लेवल है राउंड 1 में। तो इसका ये मतलब है कि ये जो है ये राउंड 1 में, ये जो है ये राउंड 1 में ऑक्सीजन लेवल्स हैं इन तीनों ट्रेनीज के। नाउ उसके बाद 92 का मतलब है ट्रेनी 1 का ऑक्सीजन लेवल राउंड 2 में, 92 का मतलब है ट्रेनी 2 का ऑक्सीजन लेवल, और 92 का मतलब है ट्रेनी 3 का ऑक्सीजन लेवल। तो ये राउंड 2 के जो ऑक्सीजन लेवल से ट्रेनी 1, ट्रेनी 2, ट्रेनी 3 के हैं। और जो ये लास्ट वन है इसका क्या मतलब है, ये ट्रेनी 1, ट्रेनी 2 और ट्रेनी 3, इन तीनों का राउंड 3 में क्या ऑक्सीजन लेवल। अब हमको क्या करना होगा, 95, 92, 90 इनका एवरेज निकालना होगा। उसके बाद हमको क्या करना होगा, उसके बाद हमको, लेट मी चेंज द कलर, उसके बाद हमको 92, 90 और 92 इसका एवरेज निकालना होगा। उसके बाद हमको क्या करना होगा, लेट मी चेंज द कलर, 95, 92 और 90 का एवरेज निकालना होगा। और इसमें से जो भी मैक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज मैक्सिमम फिट ट्रेनी, इट इज मैक्सिमम फिट ट्रेनी। और अगर मोर देन 1 मैक्सिमम आते तो दोनों को प्रिंट करना है। और अगर किसी का भी एवरेज 70 से बिलो है तो उसको क्या बोलना है, अनफिट। तो आपको प्रॉब्लम सिनेरियो क्लियर है सभी को, एवरीवन? Everyone, the problem scenario is clear to everyone or not? Please tell me. This is previous year TCS NQT कोडिंग राउंड क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे अगर आप आईटी इंडस्ट्री में अपने आप को अपियर कर रहे हो। तो आपको बेसिकली रिटन एग्जाम जो होता है उसके बाद फर्स्ट राउंड यही होता है, और उसके बाद आपको टेक्निकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हमने पिछले 3 सेशन में डिस्कस किए हैं। सभी को क्लियर है या नहीं है, एवरीवन? ओके, तो आपको मैं जस्ट आई एम गिविंग यू सम 1 मिनट और 2 मिनट, आप ट्राई करो कि कैसे बनेगा। एटलीस्ट आप सभी ट्राई करें ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन। टिल दैट मैंने कुछ लिंक शेयर करी है, अगर कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया है, अगर उनको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टुडे सेशन ये पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो ये पीडीएफ आपको इस ग्रुप पे मिलेगा, जो कि लिंक आपके पास शेयर है। आप फ्यूचर में अपडेट्स लेने के लिए लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो, और अपना फीडबैक आप सबसे लास्ट वाले लिंक पर जाकर दे सकते हो। ओके, नाउ काइंडली राइट द सॉल्यूशन इन चैट बॉक्स एंड प्लीज टेल मी कि आप कैसा, व्हाट अप्रोच यू आर गोइंग टू यूज फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स, what kind of strategy you are going to use. Everyone, एटलीस्ट ट्राई करें, एल्गोरिथम ही लिखें, कुछ नहीं है तो सुडो कोड लिखें, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेहद जरूरी है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इससे ना तो कोई हार्ड लेवल होगा, ना इससे कोई लो लेवल होगा। ये जो इंटरमीडिएट लेवल है, बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो एवरीवन काइंडली focus on this and try to answer me. प्रॉब्लम ये है हमारा,
कि आपको एक कमिटी प्रिपेयर हो रही है जिसमें 3 ट्रेनिज को सिलेक्ट करना है, और वो जो 3 ट्रेनिज को आपको सिलेक्ट करना है उनका एक फिटनेस टेस्ट होने वाला है, और वो जो फिटनेस टेस्ट होगा उसमें 3 राउंड्स होंगे, और उसमें जो 3 राउंड होने वाले हैं उसमें क्या होगा, हर राउंड में ऑक्सीजन लेवल मापा जाएगा। ऑक्सीजन लेवल जिसका मैक्सिमम होगा, तीनों राउंड के बाद एवरेज निकालना है, जिसका मैक्सिमम होगा वो सिलेक्शन होगा, और जिसका ऑक्सीजन लेवल सबसे अगर 70 से लेस है तो वो अनफिट है, और अगर मोर देन 1 वैल्यू जैसे आते हैं, मतलब लेट से कि ट्रेनी 1 का ऑक्सीजन लेवल एवरेज वाला वैल्यू वो 95 है, और ट्रेनी 2 जो है उसका भी ऑक्सीजन लेवल तीनों राउंड के बाद जब एवरेज किया तो वो भी 95 है। तो हमको ट्रेनी 1 और 2 दोनों को ही सिलेक्ट करना है कि ये मोस्ट फिट ट्रेनीज हैं। Okay, now let's focus on the solution then. See here. Sir. Yes. Sir, in exam, sir, do we have to write the full code, or we can just explain the logic or algorithm? Basically ये वाला जो प्रॉब्लम है इस टाइप में, ये जो प्रॉब्लम है जो आपके सामने है अभी, इस प्रोग्राम में क्या हुआ था कि ये प्रोग्राम आपको दिया हुआ था, ये प्रोग्राम दिया हुआ था मतलब कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट होता है टीसीएस एनक्यूटी का, उसमें जो राउंड नंबर 3 होता है, लेट मी टेल यू एग्जैक्टली, राउंड नंबर 1 इज देयर, राउंड नंबर 2 इज देयर, राउंड नंबर 3 इज देयर, एंड राउंड नंबर 4 इज देयर फॉर टीसीएस एनक्यूटी। तो ये जो राउंड नंबर 1 है बेसिकली यहाँ पर आपको क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जब आप क्वालिफाई हो जाते हो यू अपियर इन राउंड 2, जस्ट नेक्स्ट इसका सीक्वेंस होता है, जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हो आप राउंड 2 पे आ जाते हो। इसमें 10 टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेसिकली रिलेशन होते हैं इनपुट आउटपुट क्वेश्चन से, डेटा स्ट्रक्चर से, एल्गोरिथम से, और कुछ क्वेरीज होती है जो कि बैकएंड की डेटाबेस की क्वेरीज हो सकती है। टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप आते हो राउंड 3 पे। इस राउंड 3 में, ये जो राउंड 3 है, इस राउंड 3 में क्या होता है, 2 क्वेश्चन कोडिंग के होते हैं, 2 कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि ये 2 कोडिंग के क्वेश्चन है इस टाइप से दिए होते हैं। किस टाइप से, ये जैसे कि ये कोडिंग का क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, उसके बाद एक यूज केस ऐसा दिया हुआ है, और आपको अगला समझाया गया है कि ऐसे आपको अगर इनपुट है तो आउटपुट लाना है, और इस टाइप से राउंड चलेंगे, मतलब ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद आपको इसके नीचे मिलेगा ऑनलाइन कंपाइलर। उस ऑनलाइन कंपाइलर पे जब आप अपना कोड लिखोगे तो वो एग्जैक्टली रन करना चाहिए, मतलब कि अगर आप, जैसा कि इसने बोला कि इनपुट वैल्यूज ये दी गई है तो आउटपुट वैल्यूज ये आनी चाहिए, गेटिंग इट, कि अगर आप इनपुट वैल्यूज ये दोगे तो स्क्रीन पे आउटपुट वैल्यू ये शो होनी चाहिए। ये किस राउंड में होता है, राउंड 3 में। जब राउंड 3 में आपका एग्जैक्टली वो आउटपुट शो हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया है बिल्कुल हार्ड लेवल के प्रॉब्लम नहीं आते। अगर आपने इंजीनियरिंग में बिल्कुल ऑनेस्टली पढ़ाई की है, या फिर आपने कुछ मेहनत करी है कोडिंग प्रॉब्लम्स पे, जैसा कि मैंने बताया 15 से 20 दिन की मेहनत अगर आप कोडिंग प्रॉब्लम पे कर लोगे, ये पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा, ये प्रॉब्लम्स आप बना लोगे तो आपको एक मोटे तौर पे आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको 15-20 क्वेश्चन और इस टाइप के कुछ बनाने होंगे। अगर वो आपसे बन जाते हैं और आप ये वाला जो है इसमें 2 क्वेश्चन कोडिंग के राउंड 3 में कर देते हो और आपको एग्जैक्टली आउटपुट आ जाता है, तो आप राउंड 4 के लिए सिलेक्ट होते हैं। और इस राउंड 4 में होता है इंटरव्यू, और ये जो इंटरव्यू होता है वो एचआर प्लस टेक्निकल। तो ये जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है उसमें क्या होता है, वही जो हमने पिछले 3 दिन में जितने प्रोग्राम किए उसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम दिए जाते हैं, वो कन्वेंशनल होते हैं बेसिकली। और एचआर इज जस्ट बेसिक टू नो योर बैकग्राउंड एंड ऑल दैट स्टफ्स, राइट। तो बेसिकली ये जो कोडिंग प्रॉब्लम्स है, अब इसमें डिपेंड करता है कि लेट से कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है, अगर कुछ ज्यादा ही हार्ड लेवल का प्रॉब्लम आ गया तो किसने कम एरर शो करी है उसका कोड सिलेक्ट। और लेट से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करके कोड लिख दिया है, 100% उनका रैंकिंग ऊपर होगा। तो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 करने के बाद क्या होता है, आपका एक एनक्यूटी स्कोर जनरेट होता है। क्या होता है, आपका एक एनक्यूटी स्कोर जनरेट होता है। और जैसे ही एनक्यूटी स्कोर जनरेट होता है तो जिसका एनक्यूटी स्कोर सबसे ज्यादा होता है उसको पहले इंटरव्यू कॉल आता है।
उसके बाद जिसका एनक्यूटी स्कोर होता है उसको, अगर उनके इंटरव्यूज कंडक्ट हो गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो इस मैनर में वो जो एनक्यूटी स्कोर है चलता है। गेटिंग इट? ऑल इंडिया लेवल पे होता है। उसके बाद दूसरी बात, ये जो आपका एनक्यूटी स्कोर है ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। ये जो एनक्यूटी टेस्ट का स्कोर है इट इज वैलिड फॉर 2 इयर्स। अभी का जो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, अगर आगे कंडीशंस चेंज हो जाती है हम कह नहीं सकते, बट अभी के हिसाब से अगर ये एनक्यूटी टेस्ट है 2 साल के लिए ये स्कोर कार्ड वैलिड है। इसका क्या मतलब है? अगले 2 साल तक कोई भी कंपनी जो टीसीएस के एनक्यूटी स्कोर का यूज करके हायरिंग करेगी तो वहां पर आपका नेम भी लिस्ट में कहीं ना कहीं मेंशन होगा, एंड डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ दैट आपका सिलेक्शन या आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। तो ये एनक्यूटी टेस्ट का कंप्लीट प्रोसीजर होता है। आया समझ में आपको? यस सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ, बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया। ये सिर्फ टीसीएस पर्सपेक्टिव के लिए। अगर आप बाकी कंपनीज की बात करें, एसेंचर, एचसीएल टेक्नोलॉजी, तो ये डायरेक्टली आपको ऐसे प्रॉब्लम वहां दिए जाएंगे। हो सकता है आपको पीसी दिया जाए, अगर पीसी नहीं दिया जाता है तो ऐसा प्रॉब्लम आपको एक पेपर पे प्रिंट करके दिया जा सकता है। उस केस में आपको हैंड रिटन प्रॉब्लम भी सॉल्व करना हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपको कौन सा एचआर पैनल मिला है और अगर ये ऑफ कैंपस में जा रहे हो या कैसे जा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम का लेवल यही रहने वाला है। एग्जैक्टली। ओके, who answered it? Very good, Madhukar Tiwari. Very good. Excellent. Excellent. Okay, see here. अब हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो see here, आपको क्या मेथडोलॉजी यूज करना है and how you are going to explain, right? Okay, one more solution. Who answered it? Oxygen level. Yes, Surya Srivastav. Very good. You used C out, C plus. No problem. You can use it. Okay, see here. हमने क्या किया? We have created an array of 3 by 3 and basically 3 by 3 का ये array हम create कर रहे हैं। Getting it? ये 3 by 3 का हमने क्या किया? एक array create किया। और ये array हम क्यों create कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और इस array का नाम है TRAINEE। इस array का क्या नाम हमने दिया है? TRAINEE। बेसिकली जो इसका इंडेक्सिंग होता है आपको पता है, रो का इंडेक्सिंग जो है वो ऐसे होगा 0 1 2 और कॉलम का इंडेक्सिंग भी कैसे होगा? 0 1 2। मतलब इस कॉलम का क्या एड्रेस है? 0 0। इस कॉलम का क्या एड्रेस है? 0 1। इस कॉलम का क्या एड्रेस है? 0 2। इस कॉलम का एड्रेस हो जाएगा 1 0 1 1 1 2। इसका 2 0 2 1 एंड 2 2। राइट, वेरी सिंपल। नाउ इंट एवरेज 3 इक्वल्स टू 0। हमने एक और वेरिएबल लिया है एवरेज, और वो जो एवरेज अरे है, ये एवरेज अरे आपने ऐसा कुछ लिया है। इस अरे का नाम है एवरेज और ये अरे ऐसा है और इसका इंडेक्सिंग 0 1 2 ऐसा कुछ होगा और इनिशियली इसको असाइन किया है 0। और कुछ और वेरिएबल हमने लिए हैं जैसे कि आई जे मैक्स। इंट आई कामा जे कामा मैक्स इक्वल्स टू 0। तो हमने एक वेरिएबल लिया है आई जे और मैक्स को इनिशियली हमने क्या असाइन किया है? 0। इनिशियली जो हमारा मैक्स है उसको हमने वैल्यू असाइन किया है 0। उसके बाद आप देखोगे वी आर स्टार्टिंग फॉर लूप i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। तो i का वैल्यू इनिशियली कितना है? 0। 0 इज लेस देन 3, ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम नीचे वाले लूप पे आ जाएंगे। फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3, j का वैल्यू इनिशियली 0 है, 0 इज लेस देन 3, ट्रू। यस, हम क्या करने वाले हैं? 1 बाय 1 यूजर से वैल्यू लेने वाले हैं और यूजर से वैल्यू लेने के बाद हम क्या करेंगे? उनको ये जो अरे है इसमें स्टोर करेंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं? scanf %d m%training ij, मतलब 0 और 0 इंडेक्स पे हमको एक वैल्यू स्टोर करना है जो कि ट्रेनी नंबर 1 जो होगा उसका ऑक्सीजन लेवल होगा। गेटिंग इट? क्योंकि आपको फैशन पहले ही बता दिया गया, ये वाले फैशन में आपको वैल्यू स्टोर करनी है। पहले इंडेक्स पे ट्रेनी 1, देन ट्रेनी 2, देन ट्रेनी 3, देन राउंड 2 में ट्रेनी 1 ट्रेनी 2 ट्रेनी 3। मतलब ये जो अरे है यहाँ पर क्या होगा? ट्रेनी 1 का राउंड 1 में ऑक्सीजन लेवल, इधर ट्रेनी 2 का राउंड 1 में ऑक्सीजन लेवल और इस पार्ट में ट्रेनी 2 का राउंड 1 में ऑक्सीजन लेवल। सिमिलरली सेकेंड रो में मतलब राउंड 2, ये क्या हो गया? राउंड 1, ये हो गया राउंड 2 और ये रो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके राउंड। और ये कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके ट्रेनी का नंबर कि ये कौन सा ट्रेनी है। राइट, तो राउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रोज एंड ये जो कॉलम्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन सा ट्रेनी है। तो ट्रेनी 1 का राउंड 1 में जो
है, क्योंकि i का वैल्यू 0 है और j का वैल्यू 0 है। तो लेट से हमने दिया 95, वो इधर स्टोर हो जाएगा। फिर वो चेक होगा कि ये जो है इफ ट्रेनी ij इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन ट्रेनी 1 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 100। अगर आपने कुछ ऐसा वैल्यू दे दिया जैसे कि -1 या 102, मतलब 1 या 100 की रेंज में अगर वो नहीं है तो वो जो वैल्यू है वो नहीं लिया जाएगा, उसको 0 कंसिडर किया जाएगा, उस वैल्यू को नहीं लिया जाएगा। गेटिंग इट? उस वैल्यू को नहीं लिया जाएगा। और हम हर बार क्या करेंगे, वो जो वैल्यू है यूजर से ये वाला वैल्यू लेने वाले हैं। वापिस से क्या होगा, आई का जे का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगली बार जो वैल्यू स्टोर होगा वो किस इंडेक्स पे होगा, 0 और 1। तो लेट से यहाँ पर आ गया 99। फिर अगला बार वापस आपका जे का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होके हो गया 2। तो अगला वैल्यू किधर स्टोर होगा, 0 और 2 पे। आई का वैल्यू अभी भी 0 है और जे का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर लेट से आपका वैल्यू कुछ भी स्टोर हो सकता है। और लेट से जो अभी आपका वैल्यू स्टोर है यहाँ पर लेट से 92 हमने दे दिया। उसके बाद क्या होगा, जब j का वैल्यू 2 हुआ तो अब पोस्ट इंक्रीमेंट होके होगा 3 इज लेस देन 3 फॉल्स। अब वापिस आप ऊपर वाले लूप पे जाओगे और i का वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे। और लेट से आपने i का वैल्यू इंक्रीमेंट किया और i का वैल्यू हो गया 1 इज लेस देन 3 ट्रू। वापिस से ये नीचे वाले j लूप पे आएगा और राउंड 2 में सबके वापिस से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन लेवल को मेजर करेगा। लेट से हम वापिस दे देते हैं 95, 99 और 92। इसके बाद क्या होगा, वापिस से आई का जे का वैल्यू फिर फेल हो जाएगा और वापिस से आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। मतलब वापिस से ये जे का लूप 3 बार चलेगा और राउंड 3 के लिए वापिस से ये 3 वैल्यू लेगा। लेट से हमने अभी इक्वल वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है रेंडम, हमने अभी ऐसा कुछ वैल्यू दिया है। इसके बाद क्या होगा, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 3 फेल। मतलब हमारा जो कंप्लीट अरे है वो हमने क्या कर दिया है, फिल हो गया है। मतलब हमने यूजर से वो जो वहां पर टेस्ट हो रहा है उसने क्या किया, सारे ऑक्सीजन लेवल को फिल कर दिया है। सारे ट्रेनिंग्स का जो ऑक्सीजन लेवल है वो फिल हो चुका है। नाउ इसके बाद क्या होने वाला है, हमको एवरेज निकालना है। अब तो एवरेज हम कैसे निकाल रहे हैं, फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 3, j इक्वल्स टू 0 j लेस देन 3। हम क्या करेंगे, देखेंगे इधर, एवरेज i इक्वल्स टू एवरेज i प्लस ट्रेनी ji। इनिशियली i का वैल्यू है 0 और j का वैल्यू है 0। तो ji का क्या मतलब है, इनिशियली हम 0 वाले का लेवल जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। तो 0 जो है, अगर आप देखोगे कि 0 जो है उसमें आपके पास है वैल्यू 95 और उसके बाद ये वापिस चलेगा और जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। मतलब आपको अगला वैल्यू कौन सा मिलेगा, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, मतलब जे का वैल्यू अगला क्या होगा, ये वाला रो वाला, राइट। क्योंकि हमको जे आई प्रिंट करना है, मतलब सबसे पहले 0 लिया, फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब अगला वैल्यू 10 का आएगा। मतलब आपने सबसे पहले ये 95 वाला वैल्यू लिया, उसके बाद फिर ये 95 वाला वैल्यू लिया। उसके बाद क्या होगा, वापिस से जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2 और अगला वैल्यू आप कौन सा लोगे, 20, क्योंकि जे आई लिखा है, आई जे नहीं लिखा है, इसको जे आई लिखा है क्योंकि हमको एवरेज इन का चाहिए। ट्रेनी 1 का तीनों राउंड का एवरेज, ट्रेनी 2 का तीनों राउंड का एवरेज और ट्रेनी 3 का तीनों राउंड का एवरेज। गेटिंग इट? तो क्या होगा, हमने यहाँ पे तीनों वैल्यू ले ली, 0 0 1 0 2 0 और तीनों पे उसको क्या मिला, 95 प्लस 95 प्लस 95। और वो क्या करेगा, इस केस में 95 डिवाइड बाई 3 करेगा। तो उसको एवरेज ऑफ आई का अभी क्या वैल्यू है 0, एवरेज ऑफ आई ये कितना मिल गया उसको, एवरेज ऑफ आई 95। और उसको पता है आई का वैल्यू 0 है, मतलब आई का वैल्यू ये 0 है, मतलब ये किसकी बात हो रही है, ट्रेनी 1 की बात हो रही है। सिमिलरली अब क्या होगा, आई का वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। तो जब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला जो फॉर लूप है वापिस से 3 टाइम रन करेगा। और जब ये वापिस से 3 टाइम रन करेगा तो वापिस से ये जो एवरेज वाला स्टेटमेंट है ये रन करेगा। ये जो एवरेज निकालने वाला स्टेटमेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एवरेज हर बार क्या करेगा, रो वाइज निकालेगा। मतलब अब इसका एवरेज, जे का इसका एवरेज और इसका एवरेज जो है वो आपको निकलेगा, राइट। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, जो इसका एवरेज है वो स्टोर हो जाएगा एवरेज ऑफ 1 में और वो एवरेज होगा 99। और आप देखोगे I1 का मतलब है ट्रेनी 2 का जो वैल्यू, मतलब ये ट्रेनी 2 का जो है वो कितना हो गया, 99। अब क्या होगा, ट्रेनी 3 का भी सिमिलरली इसी तरीके से निकलेगा और ट्रेनी 3 जो है वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, एवरेज 2। एवरेज 2 में जो है वो ट्रेनी 3 की जो एवरेज वैल्यू है वो क्या हो रही है, 92 92 92 डिवाइड बाई 3। तो 92 प्लस 92 प्लस 92 डिवाइड बाई 3 करोगे वो 92 ही आएगा,
राइट। तो हमने एवरेज जो ट्रेनी आपका 3 है उसका एवरेज वैल्यू इधर ले लिया है, ये 92 हो गया, ये 99 हो गया, ये 95 हो गया। नाउ एवरेज नाम का ऑलरेडी ये एक अरे हमने बनाया था, आपको पता है इधर। तो इसमें ये जो वैल्यूज है 1 बाय 1 स्टोर होती जाएगी, 1 बाय 1 ये वाली वैल्यूज स्टोर होती जाएगी। जैसे फर्स्ट हो जाएगा 95 वो इधर स्टोर हो जाएगा, उसके बाद 99 वो इधर हो जाएगा, और नेक्स्ट 92 तो ये 92 इधर स्टोर हो जाएगा। ये एवरेज नाम का जो हमने आरए बनाया था ना उसमें ये वैल्यूज स्टोर कम हो हो जाती है। गेटिंग। नाउ आग तो लगा रहा हूँ उसका नीचे रख के मैं। प्लीज क्लास अनम्यूट का फोन हीट हो रहा है, लाइट कम हो रही है। आगे बता। यस। नाउ ये एवरेज हमने निकाल लिया, राइट, हमने एवरेज निकाल लिया है, और ये जो हमारा एवरेज वाला अरे है वो इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा। अब हमको एवरेज में से मैक्सिमम एवरेज कौन सा है वो निकालना है। तो ये वाला जो लूप है, दिस इज फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम आउट ऑफ दिस अरे। ये जो अरे हम इधर लिख देता हूं मैं, हमारा जो अरे यहाँ पे हमने बनाया था एवरेज, इसमें हमने क्या किया, 3 स्पेसेस का जो अरे था इसका नाम है अरे का एवरेज, और यहाँ पे फर्स्ट 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर है 95, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर है 99, और सेकंड इंडेक्स पे क्या स्टोर है 92, राइट। अब i इक्वल्स टू 0, हम 0 से कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। इफ एवरेज ऑफ i इज ग्रेटर देन मैक्स, इनिशियली हम मैक्स का वैल्यू 0 दे देंगे, तो हम एज्यूम करेंगे 95 इज ग्रेटर देन 0, डेफिनेटली ये ट्रू है। तो अभी हम मैक्स इक्वल्स टू एवरेज आई, तो अभी इस केस में हम मैक्स क्या बोल देंगे, मैक्स इक्वल्स टू एवरेज 0, दैट इज मैक्स इक्वल्स टू 95 है अभी। उसके बाद i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, मतलब अब i यहाँ पर आएगा। अब ये क्या चेक करेगा, इफ एवरेज ऑफ i दैट इज एवरेज ऑफ 1 दैट इज 99 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स का क्या वैल्यू 95, यस इट इज ग्रेटर, तो हम वापस से मैक्स का वैल्यू वापस से रीडिफाइन करेंगे, और मैक्स का वैल्यू क्या अपडेट करेंगे, एवरेज ऑफ 1, एवरेज ऑफ 1 क्या है 99। उसके बाद i का वैल्यू 3 हो जाएगा, और i का वैल्यू जैसे ही 3 हुआ तो ये वापस से एक और कंपैरिजन करेगा, एवरेज ऑफ i का वैल्यू हो गया 2, average of 2 is greater than max, average of 2 is greater than 99, what is average of 2, 92, is 92 is greater than 99, no, तो ये वाला max वाला अब अपडेट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, for i equals to 0, i less than 3, i plus plus, जो मैक्सिमम नंबर है वो प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या मिला, max equals to average of max equals to average of 1, हमको ये मिला यहाँ से इस वाली लाइन, क्योंकि ये जो मैक्स था हमको यहाँ से मिला। तो अब क्या होगा, ये जो मैक्स वाला एलिमेंट है इसको प्रिंट करवाने के लिए ये वाला व्हाइल लूप चलेगा, मतलब जैसे ही एवरेज 1 आए वो मैक्स हो जाए, और ट्रेनी नंबर जो है उसको 1 i plus 1 किया है, क्योंकि इस अरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट किया है। तो अगर ये मैक्सिमम है मतलब i plus 1, लेकिन मैक्सिमम एवरेज 99 आ रहा है, यहाँ पर अरे का इंडेक्सिंग 1 है, अरे का इंडेक्सिंग 1 है मतलब ट्रेनिंग नंबर 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रिंटफ में क्या किया i plus 1। इसका मतलब है कि जो अरे i है, जो एवरेज 1 है, ये किसका एवरेज है, ट्रेनी 2 का, ये ट्रेनी 2 का एवरेज है। नाउ यहाँ पर आपको क्या प्रिंट हो गया कि ये जो ट्रेनी का एवरेज है ये ट्रेनी 2 का एवरेज है, और ट्रेनी 2 जो है ये मैक्सिमम फिटनेस हमको शो कर रहा है, ये जो ट्रेनी 2 है वो हमको क्या कर रहा है, मैक्सिमम फिटनेस को शो कर रहा है। गेटिंग इट एवरीवन। अगर ये एवरेज 70 से नीचे होता तो यहाँ पे प्रिंट आउटपुट हो जाता ट्रेनी इज अनफिट, लेकिन किसी का भी एवरेज 70 से नीचे नहीं है, और जो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिला है वो क्या मिला है 99, जो कि इंडेक्सिंग 1 पे था। इंडेक्सिंग 1 का मतलब i plus 1 ट्रेनी का नाम। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट अ पीस ऑफ कोड इन योर कोडिंग इंटरव्यू। ये क्लियर है सभी को? हेलो एवरीवन, इज दिस प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन और नॉट? आपको इसी तरीके से यह प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व करना है, इसी तरीके से उधर आपको एक्सप्लेन करके बताना है। देन डेफिनेटली अगर इतना आप लिखते हो तो आपका आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ एरर होगी ना तो एरर उधर ही शो हो जाएगी। क्लियर है सभी को? किसी को भी अगर कोई भी डाउट है किसी भी लाइन में आप पूछ सकते हो। अगर इन ये जो आपको पीडीएफ में दे दूंगा, डोंट वरी, बट स्टिल अगर किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी लाइन में आप पूछ सकते हो। आयुष, एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, जितना भी करें कम है, बट हम कोशिश करें जितना ज्यादा आप ग्रेस्प कर सकते हो। बेसिकली पर्पस यही है कि आपको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन वो समझ में आए,
और आपको ये समझ में आए कि किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि अगर कोडिंग को प्रॉब्लम आ रहा है तो एक प्रॉब्लम 30 मिनट्स का प्रॉब्लम होता है उधर, आपको 30 मिनट दिए जाएंगे और 30 मिनट में यह प्रॉब्लम बनाना है, गेटिंग इट। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको, एग्जाम में 2 प्रॉब्लम आएंगे, तो हमको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर एक प्रॉब्लम भी लिया है तो उसको सॉल्व करने में हमको 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ पीस ऑफ कोड नहीं लिखना, मुझे वो एक्सप्लेन भी करना है आप लोगों को कि आपको इस तरीके से वहां पर ये कोड लिखना है, गेटिंग इट। तो मेरी कोशिश रहेगी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लूं और आपको उसके बाद ये कंप्लीट पीडीएफ में सेंड कर दूं, जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन लिखे हुए हैं इसमें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या प्रिंटफ स्टेट, क्या सिनेरियो वो क्रिएट करते हैं और क्या मतलब सिनेरियो क्रिएट करने के बाद मतलब कि किस टाइप से आपको इसका कोड लिखना होता है, ठीक है। एंड अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें स्वप्निल, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप इससे देखोगे, हमको 3 राउंड्स यहाँ पर सॉल्व करने हैं हमको। आपको मैं जनरली से बता देता हूँ, अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में बात करोगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वी हैव टू सॉल्व n राउंड्स, वी हैव टू सॉल्व n राउंड्स, और ये जो n राउंड्स है आपको n ट्रेनिस के लिए सॉल्व करना है, तो आपको n क्रॉस n, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। n राउंड्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आपके पास नंबर ऑफ ट्रेनिस भी n है, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वुड बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है सभी को? Sir, यस, sir, I have one doubt from the next page. ओके, यस प्लीज आस्क। Sir, in this, after for loop, we have written max is equals to average of I. From this line, we are getting the value Yes. of, we are getting the value 99. Yes, because average I means here when this loop works, this if loop works, if average I is max, then max is going to update every time it is going to update. This line is updating the value of maximum, because here comparison will be there. If average I is greater than max, then that average I value is going to be max. Every time it is going to scan. This for loop is going to run n time, and in the complete array, whatever maximum value will be there, that indexing will be here. Means average one is max. So along with indexing, we are getting the maximum number. So maximum, this max is right now holding the index of average array. The name of array is average, and at the index 1, we are having maximum value. Yes, sir. Right? Clear hai? सर आई हैव अ क्वेश्चन। Yes, please ask. सर ये वाले सॉल्यूशन में हमने 2 एरे यूज किया है, ठीक है। और अगर हम मतलब सिंगल 1D एरे लेते हैं और 4 एरे यूज कर लेते हैं, तो क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी? आप क्या बोल रहे हो? आप 4 अरे लेने वाले हो? हाँ, अगर 4 एरे लेता हूँ मैं अपने सॉल्यूशन के लिए और आपने 2 लिया है, नहीं, तो तो क्या वो वो बात 4 ऐसी हो गई। मैं बताता हूँ आपका सॉल्यूशन, आप जो बोलना चाहते हो ना, मैं समझ गया। आप बोल रहे हो कि आप जो 4 अरे लोगे वो सब सिंगल डायमेंशन के होंगे, करेक्ट? यस सर, और एक जो लूंगा मैं एक और एरे, उसमें एवरेज स्कोर करते जाऊँ। बिल्कुल, I got it. तो still you are going to you have to play with n into n numbers. आप सिंगल डायमेंशन के लो तो 4 अरे लोगे, हर अरे में आप क्या करोगे, n नंबर ऑफ वैल्यूज आर स्टोर करनी पड़ेगी, गेटिंग इट? और Yes, हर sir. अरे Yes, में sir. n नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करोगे। 4 मल्टीप्लाई विथ 3, 4 मल्टीप्लाई विथ 3 दैट इज 12। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपने 3 क्रॉस 3 जो लिया हुआ है, राइट? तो आप अगर 4 अरे लेते हो तो बेसिकली आपको इन केस ऑफ डिफाइनिंग द इनपुट वैल्यूज 3 अरे लेने होंगे। वो चौथा अरे तो एवरेज के लिए है, ठीक है? तो बेसिकली Yes, उसका sir. टाइम Yes, sir. कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही रहेगा। दिस ऑर्डर इज अप्रोक्सीमेशन, गेटिंग इट? अप्रोक्सीमेशन मतलब 1n स्क्वायर और 2n स्क्वायर या 100n स्क्वायर या 1000n स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको अप्रोक्सीमेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आंसर करना होता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप सिंगल डायमेंशनल अरे लो, डबल डायमेंशनल अरे लो या मल्टी डायमेंशनल अरे लो, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है? ओके सर। या आयुष, यस डेफिनेटली जितने क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में ना।
बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम क्लास में तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। तो क्लास का पर्पज एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। और स्टूडेंट जो है पैराग्राफ देख के डर जाते हैं, या इतना बड़ा कोड उधर देखोगे आप, लाइन ऑफ कोड के नीचे यूजर के सिनेरियो, तो उधर डरना नहीं है। वो इसका मतलब है कि इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। तो मैं आपको सफिशिएंट क्वेश्चन दूंगा। एक इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आज मैं आपको ग्रुप में देने वाला हूँ, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक। वो जो बुक है 712 पेज का बुक है। अगर वो बुक आपने सॉल्व कर लिया तो आपको कोई भी इंटरव्यू निकल जाएगा, वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट भी क्यों ना हो। क्योंकि वो 712 पेज का जो बुक है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, वो यूनिवर्सली फेमस बुक है, जिसका मेरे पास पीडीएफ रखा हुआ है। आई परचेस्ड दैट पीडीएफ एंड मैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप वो वाला अगर पीडीएफ आप सॉल्व करते हो 1 साल में भी, और अगले साल अगर किसी कंपनी के लिए जाते हो, गूगल भी निकल जाएगा। सारे क्वेश्चन अभी तक जितने गूगल माइक्रोसॉफ्ट में पूछे गए फॉर्म क्वेश्चन जितने, सबके सब डिटेल्ड सॉल्यूशन, और डिटेल्ड सॉल्यूशन ही नहीं, डिटेल्ड टेक्नोलॉजी के साथ दिए हुए हैं। एक ही प्रॉब्लम पाइथन से भी बनाया है, उसी को जावा, C++, हर टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन के नंबर्स तो हमारे पास अनलिमिटेड है। हमको वहां पे ये पता होना चाहिए हर क्वेश्चन इजी है अगर उसका प्रोसीजर आता है। देखो रियलिटी ये, हर क्वेश्चन इजी है अगर उसका प्रोसीजर आता है। तो जितना प्रैक्टिस आप करोगे डेफिनेटली उतना इंपॉर्टेंट ये होगा, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो आप प्रैक्टिस करते जाओ 1 by 1। पीडीएफ की कोई कमी नहीं होगी, कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है आयुष? Yeah, in last slide I will provide the contact details, don't worry, okay, along with some important links. Okay, I will try. Okay Ayush? Sir, if we perform the whole code and we get the runtime error, so how to resolve that error? Who asked? अगर आप क्या करते हो, ये कोड लिखते हो अभिषेक, और लास्ट में अगर आपको लगता है कि कुछ एरर आ गया है, तो आपको या तो वो सिंटैक्स एरर होगा, मतलब कुछ सिली मिस्टेक्स इन टर्म्स ऑफ पंक्चुएशंस, इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स लाइक दैट, तो वो इतना मैटर नहीं करते, वो आपको फटाफट रिजॉल्व करने होंगे, मतलब प्रैक्टिस तो करनी होगी, राइट। अगर कोड रन नहीं, लेकिन कंपाइलेशन एरर अगर आ रहा है, तो कंपाइलेशन एरर है मतलब आपने लॉजिक कहीं गलत लिखा है, इसका मतलब है प्रोसीजर का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि एरर आ रहा है और एरर किसी दूसरी वे से सॉल्व हो सकता है, मतलब कि आपने कुछ ऐसा लॉजिक लगा लिया जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और उसकी वजह से एरर आ गया, तो उसको आप हटा के आप डायरेक्टली वो वैल्यूज लिख दो उधर, कैसे भी करके एटलीस्ट आउटपुट जनरेट होना चाहिए, ये आपका गोल है। उधर कंस्ट्रेंट है ही नहीं, अगर प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट नहीं है, यू कैन गो थ्रू दैट, यू कैन यूज एनी टेक्नोलॉजी। वो हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। यस गुंजन, यू कैन, अगर कोई भी लैंग्वेज में है ना, आप क्या करो, उसको कॉपी करो और उसको गूगल पे कॉपी कर सकते हो, तो आपको इक्विवेलेंट कोड मिल जाएगा। लेट्स से मैंने आपको सी कोड दिया, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पाइथन में और इसमें ना, देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज नाउअडेज, सो डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से कि हाँ, क्या होता है, जैसे हम टीसीएस एनक्यूटी की बात करें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, प्लीज इसको फोकस करो, कि आपको लॉजिकली साइकोलॉजिकली वर्क करेगा। उधर क्या होता है, पिछली बार क्या हुआ, टीसीएस एनक्यूटी में कुछ हमारे स्टूडेंट ने अपीयर किया और उन्होंने अपना कोड, किसी ने सी लैंग्वेज में लिखा, किसी ने पाइथन में लिखा, किसी ने जावा में लिखा और किसी ने C++ में लिखा। प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी उनका कंपाइलर हैंग हो जाता है। किसी ने सी में लिखा तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो गया, किसी ने पाइथन में लिखा तो वो हैंग हो गया, किसी ने जावा में लिखा तो वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी पे वो कंपाइलर डिफरेंट वर्क कर रहा था। किसी में टाइम ज्यादा लग रहा था एग्जीक्यूट होने के। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जितना स्टूडेंट का, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, फ्रॉम द स्टूडेंट्स फीडबैक, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लिखते हो अगर अपना कोड, इफिशिएंटली रन करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और कंपाइलर वो हैंग नहीं होता है, जो टीसीएस एनक्यूटी का प्लेटफॉर्म है। क्योंकि उधर आपको जो लाइव प्लेटफॉर्म मिलेगा उधर ही कोड रन करना है, आपके पास और तो कोई उधर ऑप्शन है नहीं। तो वो जो कंपाइलर है, ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक फ्रॉम द सेवरल स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला है कि सी पर अगर हम कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज का यूज करके, तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। लेकिन ऐसा मैं यूनिवर्सली नहीं बोल रहा हूँ, वो हो सकता है उस टाइम पे कुछ सर्वर में एरर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पाइथन में जिन्होंने लिखा उनका भी एक्सेप्ट हुआ है, जावा में भी एक्सेप्ट हुआ है, C++ में भी एक्सेप्ट हुआ है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर एट द सेम इंस्टेंट आपको लगे कि कुछ एरर आ रही, तो तुरंत आपका जो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फटाफट टेक्नोलॉजी चेंज करके या उसी को कन्वर्ट करके दूसरी टेक्नोलॉजी में उधर डालें। अगर ऐसा कहीं पे इश्यू क्रिएट होता है तो, नहीं होता है
आप किसी भी लैंग्वेज, मेरा पर्सनल सजेशन है आप पाइथन यूज करो, आप सी यूज करो, C++ यूज करो, जावा यूज करो, कहीं पर भी कोई एरर नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी कोई एरर नहीं आना चाहिए, अभी इंप्रूव हो जाना चाहिए। लेकिन सी लैंग्वेज का यूज करोगे वो इजी होगा, बट इट इज नॉट यूनिवर्सल। गेटिंग इट एवरीवन? Yes, sir. ओके, सर सर Yes. एक डाउट और था, एक Yes, डाउट please. और है। यस प्लीज। तो Please ये ask. कोड जो लिखा है इनपुट वाला, वो कोड आप फिर से दिखा दीजिए। ये वाला? ये वाला हाँ प्लीज सर, प्लीज। इसमें मतलब n×n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है इसमें। तो हमने मतलब अभी जो पेपर हुआ था उसमें कोडिंग क्वेश्चन में कुछ कंपनियां जो है सीधे फंक्शन मतलब सॉल्यूशन लिखने के लिए देती है, इनपुट नहीं करवाती है। तो उसमें तो अगर वो एक ही लूप से हो जाता है तो क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी n स्क्वायर मानी जाएगी? नहीं, वो डिपेंड करेगा जैसे कि आपका जो स्टेटमेंट है वो कितने टाइम रन कर रहा है। गेटिंग इट? तो आप क्या बोल रहे हो कि एक ही लूप से सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम, तो लूप अगर एक हाँ, ही है, लेकिन जैसे अंदर नेस्टेड लूप कितने वो आपको देखने पड़ेंगे फिर। गेटिंग इट आपको? क्योंकि देखो सॉल्यूशन सर, हाँ, अगर इनपुट में अगर यहाँ 2 लूप लग रहे हैं और इधर राइट साइड वाले जो सॉल्यूशन है, इधर जो सॉल्यूशन लिखा उसमें एक ही लूप लग रहा है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? डेफिनेटली अगर एक लूप लग रहा है तो हो सकता है ये प्रॉब्लम ऑर्डर ऑफ एन एन में भी सॉल्व हो जाए, अगर आप सिंगल डायमेंशनल अरे लेते हो। लेकिन अगर यस सर। वो जो फॉर लूप है वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फॉर लूप डिपेंडेंट मतलब आपने राउंड 1 के लिए एक डिफरेंट अरे लिया, राउंड 2 के लिए एक डिफरेंट अरे लिया, राउंड 3 के लिए डिफरेंट अरे लिया। अगर ये नेस्टेड अरे नहीं है, अगर ये नेस्टेड अरे नहीं यस है सर, तो ये वाला अरे एन टाइम चलेगा, ये वाला अरे भी एन टाइम चलेगा, और ये वाला अरे भी ये एन भी टाइम n टाइम चलेगा। चलेगा। नाउ अगर ये नेस्टेड नहीं है तो क्या होगा? n+n+n, ऑर्डर प्लस ऑफ n प्लस n+n+n। 3n। तो इसका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ n। लेकिन अगर ये अरे नेस्टेड है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ा भी दोगे, राइट? गेटिंग इट? नेस्टेड नहीं यस होना सर। चाहिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब आप इस टाइप का प्रॉब्लम सोल्व करो, अगर आप क्या कर रहे हो, सिंगल डायमेंशनल अरे मल्टीपल टाइम्स ले रहे हो तो स्पेस ज्यादा कंज्यूम होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है कहीं ना कहीं, राइट? तो आपको दोनों यस सर, फिगर यस ढूंढना सर। है। अगर कोई कंस्टेंट नहीं है तो आप फ्री हो, आप मल्टीपल अरे लो, मल्टी डायमेंशनल अरे लो, सिंगल डायमेंशनल अरे लो। लेकिन यहाँ पर ये एक वे है कि इस वे से भी आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और इस वे से करोगे जिस वे से मैंने किया है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर मिल रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि एक प्रोजेक्ट आपके पास आया है, उस प्रोजेक्ट को आप कितने तरीके से कर सकते हो? एक प्रोजेक्ट को आप 10 तरीके से कर सकते हो। तो किस तरीके से करोगे आप उस प्रोजेक्ट को? किस तरीके से करोगे? जो तरीका एफिशिएंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में। गेटिंग इट? तो वहां पर दसों जो तरीके हैं उसका क्या होता है? अल्गोरिथम लिखा जाता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या पता करते हैं कि सबसे बेस्ट कौन रहेगा, तो जो सबसे बेस्ट है उसको चूज किया जाता है, राइट? तो एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये अकेला सोल्यूशन है, नो, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल सोल्यूशन आप लिख सकते हो, ठीक? तो आपको जो भी उस समय दिमाग में आ सकता है आप कर सकते हो, और आप जो भी एल्गोरिथम लिखो उसके लिए आप क्या करो फिर? टाइम एनालिसिस, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। आपको मैं सिमिलरली जैसे एक आपने पूछा ही है क्वेश्चन, तो लेट मी डिस्कस। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ इस ब्लॉक में, है ना, एक इंस्ट्रक्शन है i++ और एक इंस्ट्रक्शन है i=i+1, ठीक है? ये दो इंस्ट्रक्शन है, ये दोनों इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज किए जाते हैं गाइस? आपको पता है कि जब भी आपको इंक्रीमेंट करना है i का वैल्यू तब यूज करते हैं, करेक्ट है एवरीवन? करेक्ट है ये? Yes, sir. दोनों इक्वल है, i++=i=i+1, मेथड 1 मेथड 2 दोनों एक ही है, दोनों से एक ही काम होगा कि i का वैल्यू हमेशा पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप मेरे को बताओ एफिशिएंट कौन है, तरीका 1 या तरीका 2? दोनों में से सबसे एफिशिएंट मेथड कौन सा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सर। क्यों? सर वो दोनों ही है सर, पोस्ट दोनों same। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो पहले आती है सर। लेकिन प्रेसिडेंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी डिटरमाइन करती है। सर दोनों सेम ही वर्क करेंगे तो सर दोनों का सेम प्रेसिडेंस। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज सर यस सर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट टाइम पे रन होगा, एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कंपाइलर, यस सर, वो कंपाइलर कहीं ना कहीं कम टाइम लेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए।
एक कीवर्ड बता दो कि टेक्निकल रीजन का कीवर्ड क्या है, बस कीवर्ड बता दो। व्हाई। आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन बताओ व्हाई। सर आई प्लस प्लस में वो सीधे इंक्रीज हो जाएगा 1 से, और आई इक्वल टू आई प्लस 1 में वो पहले इंक्रीज होगा, फिर आई में फिर से असाइन होगा, तो वो ऑपरेशन मतलब 2 परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, लेट मी टेल यू, ये जो है ये आपका है यूनरी ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं आपके यूनरी ऑपरेटर। मतलब इस ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत है। और आई इक्वल टू आई प्लस 1 ये बाइनरी ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है? बाइनरी, क्योंकि यहाँ पर दो ऑपरेटर है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक एडिशन ऑपरेटर है। तो जब भी हम यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं तो जो हमारा सी कंपाइलर या जो हमारा प्रोग्रामिंग का कंपाइलर होता है वो यूनरी जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट फास्ट करता है, बिकॉज एक ऑपरेंड उसको लगेगा। लेकिन जब आप आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखोगे तो बाइनरी ऑपरेंड मतलब इसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड से प्ले करना होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ऑपरेंड एक होगा तो वो टास्क जल्दी होगा, और ऑपरेंड दो होंगे तो वो टास्क क्या होगा? वो टास्क और डिले हो जाएगा। गेटिंग इट? तो जो बेसिक रीजन है वो क्या है? यूनरी ऑपरेटर। मतलब कि अगर आपके पास 1,00,000 लाइन वाला कोड है, लेट्स से आप आईआरसीटीसी का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, और आईआरसीटीसी का जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसमें 10,000 या लेट्स से कि 50,000 लाइन का कोड है, और 50,000 लाइन के कोड में लेट्स से कि 500 बार आपको पोस्ट इंक्रीमेंट लगाना है, तो 500 बार आप आई इक्वल टू आई प्लस 1 लगाओगे तो वो जो कोड है वो बहुत स्लोली वर्क करेगा। लेकिन अगर आई प्लस प्लस यूज करोगे उसकी जगह तो वो जो कोड है वो समवॉट फास्टर हो जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि प्रोग्राम तो रन होगा एफिशिएंटली, किससे रन होगा? दोनों से रन होगा प्रोग्राम। मतलब कौन फास्टर रन करेगा, यही तो इंडस्ट्री में हमको कंपैरिजन करना होता है। एल्गोरिथम का मतलब ही यही है कि 10 तरीके में से एफिशिएंट कौन सा है, इस तरीके से हमको पता करना होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये भी इंटरव्यू में पूछा गया था। तो ये एक क्वेश्चन आपने पूछा इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस किया। आया समझ में सबको कॉन्सेप्ट? यस सर। कोई डाउट इसमें? शुड आई प्रोसीड नेक्स्ट? हाँ सर यूनरी ऑपरेटर आई प्लस प्लस और बाइनरी आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, सर इसमें यूनरी ऑपरेटर को ऑपरेटर प्रेसिडेंस मिल जाती है जब एग्जीक्यूट होता है सर। ठीक है, तो सर इसलिए पहले एग्जीक्यूट हो जाता है आई प्लस प्लस। नहीं, बेसिकली हम ये बोलेंगे कि यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ऑपरेंड पे वर्क होगा ना, तो इसलिए वो क्या होगा, हाँ प्रेसिडेंस यूनरी ऑपरेटर का ज्यादा होगा डेफिनेटली, लेकिन वो ज्यादा क्यों होगा उसका बैकग्राउंड रीजन मैंने आपको दिया। ठीक है, राइट सर। हाँ ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं गाइस, और उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो ये वाला आप एक और क्वेश्चन सॉल्व करो और प्लीज टेल मी कि ये वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और कोशिश रहेगी हमारी कि आपको ये प्रॉब्लम बने, सबसे बने। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है बट डोंट वरी, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है द सेम प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन, मैंने जैसा कि बताया सारे के सारे प्रॉब्लम है टीसीएस की प्रॉब्लम है, तो ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा टीसीएस एनक्यूटी 2022 का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एग्जाम में 30 मिनट्स मिले थे, और इस प्रोग्राम बहुत सिंपल प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू। The program says a washing machine works on the principle of fuzzy system. एक वॉशिंग मशीन जो है बेसिकली फजी सिस्टम प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और उसके अकॉर्डिंग वो ये बोलता है द वेट ऑफ क्लॉथ्स पुट इनसाइड वॉशिंग मशीन इज अनसर्टेन, कि हम कितने वेट का क्लॉथ उसके अंदर पुट कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उससे वो जो वॉशिंग मशीन है उसका एफिशिएंसी वर्क करेगा। बट बेस्ड ऑन वेट मेजर्ड बाय सेंसर्स, वो जो वेट है वो वॉशिंग मशीन के सेंसर्स जो है वो मेजर करेंगे, एंड इट विल डिसाइड टाइम एंड वाटर लेवल, कि जितना आपका कपड़ों का वेट है उसके हिसाब से वॉशिंग मशीन कितने टाइम रन करेगी, और वाटर लेवल क्या रखना होगा, तो आपके क्लॉथ्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल वॉश्ड हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा किस पे? द वेट ऑफ क्लॉथ्स यू पुट इन द वॉशिंग मशीन। नाउ क्वेश्चन हियर इज which can change by menus on the time machine control area. For low level water, the time estimate is 25 minutes. अगर वाटर का लेवल लो है तो टाइम कितना लगेगा? 25 मिनट। Where approximately weight is less than 0 से 2000 ग्राम, मतलब 0 से 2000 ग्राम के बीच के आपने कपड़े डाले, तो टोटल वेट ऑफ क्लॉथ्स आर अराउंड
0 to 2000 ग्राम, मतलब 2 किलो से कम कम के कपड़े हैं और कोई भी नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपका वो जो कितना बोलेगा कि आपको लो लेवल वाटर रिक्वायर्ड होगा और उसके लिए वॉशिंग मशीन 25 मिनट रन करेगा। लेकिन अगर मीडियम लेवल वाटर है तो मीडियम लेवल वाटर की अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है कि एस्टिमेट 35 मिनट आपको वॉशिंग मशीन को रन करना पड़ेगा और आप अप्रोक्सीमेटली 2001 ग्राम से 4000 ग्राम के क्लॉथ्स उसमें डाल सकते हो और 35 मिनट उसको क्या करना होगा, रन करना होगा। किसके लिए? मीडियम लेवल वाटर पे। लेकिन अगर आपका जो लेवल है वाटर का हाई है, इसका मतलब है टोटल 45 मिनट्स आपको उसको रन करना होगा और आपको आपके जो क्लॉथ्स है उसका वेट 4000 ग्राम से हो सकता है ज्यादा, बट इट शुड बी नॉट मैक्सिमम देन 7000। मतलब जो रेंज है 4 किलो से 7 किलो के कपड़े आप डाल सकते हो वॉशिंग मशीन में हाई लेवल वाटर के साथ, तो 45 मिनट आप अगर उसको रन करोगे तो वॉश हो जाएंगे क्लियरली, राइट। वेयर अप्रोक्सीमेटली वेट इज 0, टाइम एस्टिमेट इज 0 मिनट, ठीक है। बेसिकली ये बोला गया है कि कैपेसिटी जो मैक्सिमम हमको एज्यूम करनी है मशीन की वो कितनी है, 7 किलो। मतलब आपकी वॉशिंग मशीन की टोटल कैपेसिटी 7 किलो है। 7 किलो मैक्सिमम से कपड़े आप ज्यादा नहीं डालोगे, एल्स इनवैलिड इनपुट है। और वेट 0 ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट वेट इन बेस्ट केस, और एस्टिमेट 0 मिनट, अगर कुछ भी नहीं है तो 0 मिनट, वेट इज 0। तो आपका इनपुट अगर है, सी हियर मैं कैसे इनपुट बता रहा हूं, I am explaining the input. Write a function which takes a numerical weight in the range 0 से 7000 के बीच में आपको क्या करना है, कोई भी वेट डालना है। मतलब आप अपनी वॉशिंग मशीन को एफिशिएंटली कैसे रन करोगे, ये प्रोग्राम उस चीज का है। हाउ एफिशिएंटली यू आर गोइंग टू रन योर वॉशिंग मशीन, तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितना वेट कपड़े का डाल रहे हो। अगर कपड़े का वेट 2 किलो से कम है तो वो क्या बोलेगा, लो लेवल रखो वाटर का और 25 मिनट रन करो। अगली बार बोलेगा अगर वेट आपका कपड़े का 2 किलो से 4 किलो है तो आप क्या करो, मीडियम लेवल का वाटर रखो, 33 मिनट रन करो। और वो बोल रहा है अगर आपका कपड़े का वेट 4 किलो से ज्यादा है लेकिन 7 किलो से कम है तो आपको वॉशिंग मशीन में हाई लेवल का वाटर रखना है और 45 मिनट रन करना है। गेटिंग इट? नाउ अगर 7 किलो से ज्यादा का आपने कपड़ा डाल दिया तो आपका क्या मैसेज होना चाहिए, ओवरलोडेड। और अगर आपने वाटर तो बिल्कुल 0 वाटर डाला है मतलब इनवैलिड इनपुट है, मतलब 7 किलो से ज्यादा पे इनवैलिड बता देना चाहिए अल्टीमेटली। इनपुट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू, आउटपुट मस्ट हैव फॉलोइंग फॉर्मेट। आउटपुट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एग्जांपल इनपुट वैल्यू है 2000 तो आउटपुट क्या आना चाहिए, टाइम एस्टिमेटेड 25 मिनट, इस तरीके से। अगर आपका इनपुट वैल्यू है, लेट से अगर आपका इनपुट वैल्यू क्या है 5500, 5500 ग्राम के आपने कपड़े डाले, 5.5 किलो कपड़े अगर आपने वॉशिंग मशीन में डाले, आउटपुट वैल्यू क्या आना चाहिए, 45 मिनट। गेटिंग इट एवरीवन? प्रॉब्लम सिनेरियो सभी को क्लियर है? ये भी टीसीएस एनक्यूटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राइट। आपको एक कोड लिखना है, कोड में बता रहा हूँ बहुत इजी है, 12 लाइन या 10 या 12 लाइन में कोड हो जाएगा। 10 या 12 लाइन का कोड लिखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाना चाहिए। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन कि आप सभी आंसर करोगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट मधुकर तिवारी, excellent. Definitely you will crack that. Definitely you are going to crack such kind of questions because the real level of question is this. यही लेवल रहने वाला है। आप क्या करो, बस पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आई एम एक्सप्लेनिंग टू एवरीवन, आई एम गाइडिंग एवरी स्टूडेंट कि आप बस ये पैराग्राफ देख के डोंट बी गेट कंफ्यूज, क्योंकि पैराग्राफ्स इस तरीके से लिखे होते हैं लेकिन इनका जो इशेंस होता है वो बहुत सिंपल होता है और वो जो सिग्निफिकेंस है वो यूज केस सिनेरियो से और ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल मुझे इंटरेक्टिवली रिप्लाई कर रहे हैं, लाइक श्रेया, सूर्या एंड लाइक मधुकर। I am expecting that you are going to get definitely qualify, and expecting everyone when you are going to get qualify any MNC, definitely you are going to message me on the LinkedIn. That would be very useful for your juniors as well as for keeping your record in future, so that you, your juniors will get help from you, right? You can guide to your juniors at that time. Normally TCS NQT conducted at the last of April, but due to corona in previous year it was postponed and was conducted in August or might be in September. But every year you have to visit TCS NQT website, and on the basis of that you are going to get
when they get conduct. Normally in April or in October, November they conduct twicely in a year, and the TCS NQT result is valid for 2 years. You can use that scorecard in relation of the companies you can see on the website who are affiliated with TCS NQT score, and you can apply in that company with the help of this TCS NQT scorecard. So TCS NQT scorecard is very, very important. Validity 2 year. You can attempt exam as much time as you want. Every time if you will apply, definitely you can sure, Ayush, you can talk regarding this from the Prabhakar sir or what whoever is the right person. If they will going to give me such lecture, definitely I will complete. Okay, so if you are very if you find this kind of lectures very much useful, then 100% I will suggest that kindly contact with them and definitely tell them that we want to get some more lectures from sir, and definitely will teach you, right? So right now, let me tell you the solution and the strategy of this problem. See here, हम क्या करने वाले, बहुत simple program है. Everyone focus, very good, excellent. Focus करेंगे. ये हमने ड्राइवर कोड लिखा है. ड्राइवर कोड मतलब जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, और हमारा प्रोग्राम आपको सभी को पता है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और इधर मेन फंक्शन का यूज करके अगर मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, इंट मशीन वेट, ये एक मेरा वेरिएबल है, एंटीजर वेरिएबल है, स्कैनफ %d m% मशीन वेट. तो यूजर से हम कोई भी एक मशीन का वेट ले लेंगे, ठीक है? तो मशीन का वेट कुछ भी यूजर दे सकता है, और उसके बेसिस पे क्या होगा, हमको ये कैलकुलेट करना होगा कि कितने टाइम में हमारे क्लॉथ्स वॉश हो जाएंगे. लेट्स से यूजर ने जो टाइम दिया है वो 3000 दिया है, यूजर ने इनपुट क्या किया है 3000, तो कैलकुलेट टाइम मशीन वेट, ये क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ. ये क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, और जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ हम कहाँ गए, हम इस लाइन पे गए. इफ n = 0, इसका मतलब है कि आपने क्लॉथ का वेट 0 दिया है. 0 दिया है मतलब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, एस्टिमेटेड टाइम इज 0, क्योंकि कपड़े का कोई वेट ही नहीं, मतलब कुछ नहीं करना है. बट अगर आपके कपड़े का वेट n is greater than 0 and less than 2000 है, मतलब आपका जो रेंज है वो 0 and 2000 के बीच में है, आप क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे, टाइम एस्टिमेटेड इज 25 मिनट. तो ये अभी फॉल्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यूजर ने अगर 3000 इनपुट दिया है, तो ये वाला जो केस है अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा. बट एल्स इफ में हम आएंगे, इफ n is greater than 2000 and less than 4000, यस, हमारा ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगा, टाइम एस्टिमेटेड इज 35 मिनट. तो यूजर को क्या दिखेगा, आप 35 मिनट का टाइमर लगा के लगा दो, और आपके जो क्लॉथ्स हैं वो बिल्कुल जैसे वॉश होने चाहिए वो हो जाएंगे. लेकिन अगर यूजर मोर देन 7000 कुछ वेट लिखेगा, तो वो इनपुट इनवैलिड इनपुट होगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो हाउ सिंपल दिस प्रोग्राम इज, and this is the real TCS NQT 2022 questions. Solutions are way easier than the question. Getting it everyone. किसी को भी कोई डाउट है इसमें आप पूछ सकते हो, बहुत सिंपल प्रोग्राम है. और ये इसी टाइप का क्वेश्चन में 30 मिनट्स मिलते हैं. आप देखोगे 10 लाइन या 12 लाइन का कोड है और आपको 30 मिनट. एंड आई होप अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रोग्रामिंग के, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा. गेटिंग इट? So such questions can be over in 10 to 15 lines or more than such lines, sir. नो, मैंने आपको एवरेज बता देता हूँ. कभी भी आपको कोड प्रॉब्लम देख के लगे तो आई एम एक्सप्लेनिंग. मैंने ऐसा कोई भी TCS NQT का ये इस लेवल का प्रॉब्लम नहीं देखा जिसमें 50 लाइन से ज्यादा का कोई कोड हो. नहीं, 50 भी नहीं होंगे, 50 से कम ही होते हैं. बट इन वर्स्ट केस यू कैन एज्यूम कि 50 लाइन से ज्यादा का कोई कोड नहीं होगा. 50 भी वर्स्ट केस में. नॉर्मली जो आपको इस लेवल में पूछे जाते हैं उनका रेंज होता है 15 से 25 लाइन का कोड होता है. वर्स्ट से वर्स्ट 15 से 25 लाइन में आपका हर बनेगा. और कुछ प्रॉब्लम ऐसे जिसमें 15 लाइन भी नहीं लगती है. तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज 15 से 25 लाइन आपको उधर लिखनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग हेडर फाइल ऑल्सो. एंड वो जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो इंक्लूड करने के बाद 15 से 25 लाइन में आपका हर प्रॉब्लम बन जाएगा. बट इतना भी टफ नहीं होता है. बट आप बेसिकली वो क्या चाहते हैं आपसे, उनको कोई हार्डकोर
डेवलपर नहीं चाहिए, उनको पता है अगर ये हार्डकोर डेवलपर है डेफिनेटली स्टार्टअप में जाएगा। उनको सिर्फ इतना चाहिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के क्लियर है तो यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, यू कैन क्रैक एनी एमएनसीज इंटरव्यू और कोडिंग प्रॉब्लम लाइक दिस। तो इसी लेवल का रहने वाला है, आपको बस इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। कम से कम 25-30 प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करके जाओ। 4-5 प्रॉब्लम आज मैंने बता दी है, बाकी आप डेली कोई प्रॉब्लम उठाओ और आप क्या करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं डेफिनेटली आज आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो आप क्या करें, उसको गो थ्रू करें और उसको गो थ्रू करने के बाद डेफिनेटली आप वन बाय वन उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो Sir, your voice is not coming clearly, sir. Sir, please speak louder, sir, please. यस, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको जो कुछ पीडीएफ है इसकी वो आज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वंस यू गॉट द पीडीएफ्स देन आपको क्या होगा, ये जो रिकॉर्डेड सेशन है ये भी आपको मिल जाएंगे गाइस। वो जो ग्रुप है ना उसमें रिकॉर्डिंग सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप उस ग्रुप में ऐड हो, जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, लेट मी गिव यू अगेन, लेट मी Sir, गिव today यू I have got you the first lecture, sir, of day 1 session. डे 1 सेशन का मिल गया है ना? Yes, sir. Recording lecture. Yes, sir. ठीक है, मैं डे 2 का अपडेट, आई थिंक डे 2 का भी अपडेट हो गया है, यू कैन विजिट देयर। और डे 2 का मैं अपडेट कर देता हूँ ग्रुप में, राइट। डे 2 का मैंने ग्रुप में अपडेट, जस्ट अ सेकेंड, राइट। और डे 2 का भी मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया है। तो डे 2 का भी लेक्चर आपको मिल जाएगा, एमएनसी प्लेसमेंट वर्कशॉप सेशन 2 मिल गया है, प्लीज चेक इट।